In video number 16, we will study about the respiratory system of the man. Respiratory system of the man includes two parts. One is respiratory passage and second one is the respiratory organ. Respiratory passage includes nose, nostril, nasal chamber, then pharynx, larynx and windpipe or trachea, and the respiratory organ is a pair of lungs. अगले वीडियो में हम मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य का श्वसन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है श्वसन मार्ग और दूसरा होता है श्वसनांग। श्वसन मार्ग में नासिका से प्रारंभ होता है, उसके बाद में आता है नासाद्वार। नासाद्वार नासावेश्म में खुलता है। नासावेश्म ग्रसनी में खुलेगा। ग्रसनी के बाद में कंठ आता है और उसके बाद में एक लंबी पाइपनुमा रचना पाई जाती है जिसे श्वासनाल कहा जाता है। श्वासनाल मुख्य रूप से जो श्वसनांग होते हैं फेफड़ों के अंदर खुलती है। In this diagram, we will study about the respiratory system of the man. Respiratory system of the man includes two parts. One is the respiratory passage and second one is the respiratory organ. The respiratory passage starts from the nose. Nose is having two small pores on either side. This is known as the nostril. Nostril open independently into a sac-like structure or chamber-like structure which is known as the nasal chamber or nasal sac. The wall of the nasal chamber is having numerous hairy outgrowth or cilia, and it is also having a layer of the cells which is able to produce a watery viscous liquid. This hairy outgrowth and along with the mucus prevent the dust particle and other impurities to get entered in our respiratory passage. This nasal passage open in the pharynx. This pharynx open into a box-shaped structure which is known as the larynx, and this larynx open in a tubular structure which is known as the trachea or windpipe. You will see here there are numerous C-shaped rings are present here which are made up of cartilage. Cartilage is a tissue. This helps to prevent of collapsing this windpipe when there is no air is present in the trachea. Now this trachea bifurcate or it divides into two branches and it is get entered in our main respiratory organ which is lungs. Lungs is situated in thoracic cavity. Thoracic cavity is having a cage of ribs on both the sides. In the front side, sternum is present. This is a stick-like structure. This is having some ribs which are get attached on the posterior side with the vertebral column. And below this thoracic cage, a muscular layer is present which is known as the diaphragm. Diaphragm divides our body into two parts. Upper one is known as the thorax and the lower one is known as the abdomen. You will see that this windpipe or trachea, when bifurcates into two branches, it is get entered in the lungs, and in the lungs it divides into the fine branches which is known as the bronchi. Bronchi terminates into very fine branches which is known as the bronchiole, and bronchiole ends into alveolar sac. हम इस चित्र के द्वारा मनुष्य के श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। मनुष्य का श्वसन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है श्वसन मार्ग और दूसरा होता है श्वसनांग, जो कि एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। श्वसन मार्ग नाक से प्रारंभ होता है। नाक के दोनों बाजुओं में एक एक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें नासा छिद्र कहा जाता है। नासा छिद्र एक कक्षनुमा रचना में खुलते हैं जिन्हें नासावेश्म कहते हैं। नासावेश्म के अंदर एक स्तर पाया जाता है जिसके ऊपर बारीक बारीक रोम के समान रचनाएं पाई जाती हैं। ये रोम के समान रचना जो रहती हैं वो वायु के अंदर उपस्थित धूल के कण या अन्य अशुद्धियों को
श्वसन मार्ग में प्रवेश करने से रोकने का कार्य करती है तथा नासाविष्म के अंदर एक कोशिका का स्तर पाया जाता है जिसके द्वारा जल के समान चिपचिपे द्रव का स्रावण होता है जिसे श्लेष्मा कहते हैं। ये श्लेष्मा जो रहती है वो धूल के कणों को अपने अंदर चिपकाने का कार्य करती है जो कि नाक के मेल के रूप में हमारे नासाविष्म में जमा हो जाता है। नासाविष्म गले के अंदर एक रचना में खुलते हैं जिसे ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी एक बॉक्सनुमा रचना के अंदर खुलती है जिसे कंठ या ध्वनि उत्पन्न करने वाला ध्वनि उत्पादक अंग कहा जाता है। ये कंठ जो होता है वह एक लंबी नलिकाकार रचना के रूप में खुलता है जिसे श्वास नली कहते हैं। इस नलिका के अंदर आपको सी के आकार के छल्ले दिखाई दे रहे हैं जो कि उपास्थि के बने हुए वलय होते हैं। उपास्थि एक जंतु उत्तक होता है जो कि दृढ़ तथा लचीला भी होता है। ये श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य करता है जब इसके अंदर वायु अनुपस्थित होती है। इसके पश्चात ये श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है जो कि वक्षी गुहा के अंदर होती है और वक्षी गुहा के अंदर एक जोड़ी श्वसनांग पाए जाते हैं जिन्हें फेफड़े कहा जाता है। वक्षी गुहा उपास्थीमय रचना से मिलकर बनी होती है। इसके सामने के भाग में एक दंडरुमा रचना पाई जाती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। ये छल्ले नुमा रचना पाई जाती है जिन्हें पसली कहते हैं और पीछे की ओर कशेरुक दंड पाया जाता है। तो ये सब मिलके एक वक्षी पिंजरे का निर्माण करते हैं जिनके अंदर फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। इनके नीचे की ओर एक पेशी रचना हमें दिखाई दे रही है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम हमारे शरीर को दो भागों में बांटता है। ऊपरी भाग जो होता है उसे वक्ष कहते हैं, निचला भाग जो होता है उसे उदर कहा जाता है। श्वास नली दोनों बाजुओं में जाकर अत्यंत सूक्ष्म नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी श्वसनिकाओं में विभाजित होती है और श्वसनिकाएं जो रहती हैं वो एक छोटे छोटे गुब्बारे नुमा रचना के रूप में परिवर्तित होती हैं जिन्हें कुपिका कहा जाता है। ऐसे असंख्य कुपिकाएं हमारे दोनों फेफड़ों में मौजूद होती हैं। इन कुपिकाओं के ऊपर जो फेफड़ों का उत्तकी स्तर पाया जाता है उसके ऊपर महीन रक्त केशिकाओं का जाल बिछा रहता है जिसके अंदर रक्त प्रवाहित होता रहता है। ऑन द सर्फेस ऑफ द लंग्स देर आर network of the blood capillaries are present in which the blood is regularly flowing